Whoosh! Do daggers ko control katehu. George ni silently do guards gegayat karunko eliminate kia or hallway mainek fork tak pohanch gaya. Upni recent observations or eavesdropping ke basis pa, wujanta the ke right path cafeteria ki taraf jata hai. Uske age mutant bachunko kaid kia gaya da. Left path, dusri taraf laboratory se bahar nikalta da. Islam ega will left path later. To Uski current abilities, Kezarie will safely sneak out karke escape ke liye koi vehicle chura sakta da. Shehar main pohanchkar will free hota or kahin bija sakta da. Mutant bachon ki wajah se attention draw ho rahi. Isliye ye unlikely da ke bot log uska picha kare. JC will left ki taraf badne walada. Right se ek chilling cry hallway main gunju. Ye ek young, childlike voice the. Ye was George ko hesitate karne pa majboor kar gaye. Or uska pound ground pa wapas gir gaya. Ye mera masla nahi hai. Main in logan ko nahi janta or strangers ke liye apni jaan ko risk karne ki zarurat nahi. Wo eventually fear be escape kari jaye. Thodi de hesitation ke baad usne dobara left move karne ki preparation ki. Echo cry is martaba ek alag bache se. Facility main pachas mutant bache de or movies main jo usne deka. Un main se serve bees. X24 ko shamil karke escape main kamyab huए de. Iska matlab ye the kiti se zyada mutant bache escape ke dauran marchu. Abhi wo sirf bache hain, lekin agar ye bade ho gaye, to ye valuable assets sabit ho sakte hain. Unko apni subordinates banani se is dangerous Marvel world main extra security mining. Always be fortune favors the brave. Behtar mustaqbil ke liye to the risk lena kabile tarif hai. Agar ye bahut dangerous ho jaye, to main bad main hamesha bag sakta ho. Apni soch badal kar. George ne apne kadam right ki taraf mod diye. Islame was sure nahi the ke uska decision such main unreasons par based the jo usne bhi consider kiye the sirfun bis ya usse zyada bachon ki zindagiyon ki wajah se da. Log aksar crisis ke samne alag tarike se act karte hain और कभी कभी ये समझना impossible होता है कि इंसान कैसे choose करेगा जब तक वो moment ना जाए. कुछ लोग अपने आप को selfish समझते हैं, मगर critical moment में दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं. दूसरे लोग virtue preach करते हैं, लेकिन आखिर में सबसे पहले भाग जाते हैं. जॉर्ज अपने आप को खस्ता और पर अच्छा बुरा इंसान नहीं समझता, बस एक average individual with average moral standards. जबकि वो दूसरों को बचाने अपनी जान कुर्बान नहीं कर सकता, लेकिन वो रिस्क लेने के लिए तैयार था दूसरों की मदद करने के लिए, खास तौर पर एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन की, बिना खुद को ज्यादा डेंजर में डाले. कैफेटेरिया में गैब्रिएला उन 3 बच्चों की तरफ देखती रही जो परस्यूअर्स को डिले करने की कोशिश में शूट हो चुके थे, और फिर से उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे. जब उसने समझा कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन फैसिलिटी कैंसर के इलाज नहीं कर रही, बल्कि म्यूटेंट किलर्स को कल्टिवेट कर रही, तो उसने और कुछ दसरदिल के अच्छे कॉलीग्स ने डिसाइड किया कि वो सीक्रेटली बच्चों के साथ एस्केप करें. लेकिन प्लान एक्शन में लेने से पहले ही फैसिलिटी के हायर अप्स ने बच्चों की एग्जीक्यूशन का ऑर्डर दे दिया. प्लान से पहले एक्ट करने पर वो गार्ड्स के सामने ओवरमैच्ड हो गए, जो कोल्ड वेपन्स और एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस के साथ तैयार थे. जब वो कैफेटेरिया तक पहुंचे तो कुछ कॉलीग्स बच्चों को कवर करते हुए मार दिए गए थे, और 50 में से 10 डजन से ज्यादा बच्चे मर चुके. लिव निकालने के चांसेस बहुत कम हो रहे थे. लोरा देखा कि X23 जो उनमें सबसे स्ट्रॉन्ग बच्चा था, कैप्चर हो चुका और मिडा में सस्पेंडर फ्री नहीं हो पा रहा. गैब्रिएला ने नियरबाई गार्ड के कोप से एक सबमशीन गन उठाया और बाकी बच्चों से कहा, दरवाजे की तरफ जाओ. आंटी इसा तुम्हें तुम्हारे डेस्टिनेशन तक ले जाएंगी. इसा लास्ट सर्वाइविंग कॉलीग थी. वो आमतौर पर एक बड़ा ट्रक चलाती सिटी से बेस तक सप्लाईज ले जाने के लिए. गैब्रिएला से नोटिफिकेशन मिलते ही वो ट्रक लेकर एंट्रेंस पर पहुंच गई बच्चों को पिक करने के लिए. और तुम और लौरा? रिक म्यूटेंट बच्चों में सबसे बड़ा वरीड एक्सप्रेशन के साथ पूछा. लब में जिंदगी गुजारने के बावजूद उनके पास कॉमन सेंस कम था, लेकिन वो नाइव नहीं थे. रिक तुम उनमें सबसे बड़ा हो, मैं उनको तुम्हारी केयर में छोड़ रही हूँ. उनको डेजिग्नेटेड लोकेशन तक ले जाओ और वहाँ मेरा इंतजार करो. मैं लौरा को ढूंढकर तुम्हारे पास ले आऊंगी. गैब्रिएला ने जेंटली कहा, फिर सबमशीन गन के साथ वाइल्डली फायर करना शुरू किया ताकि बच्चों के लिए एस्केप का मौका बन सके. हालांकि उसकी मार्क्समैनशिप पोर थी, उसका फ्रैंटिक शूटिंग X24 को कंट्रोल कराए गार्ड्स को डिसोरिएंट कर गया.
इसी X-24 ने अपने एक पैर को फ्री किया और गार्ड की आंख में एडामेंटियम क्लो से मारकर टेम्परेरीली अपने आप को आजाद कर लिया। लेकिन ये क्लियर था कि गार्ड्स उनकी पोजीशन की तरफ कन्वर्ज कर रहे। ये देखकर रिक ने अपने दांत कस लिए और बाकी बच्चों को कॉरिडोर से निकलने के लिए लीड किया। लेकिन जैसे ही वो कैफेटेरिया से निकले, उनके सामने 4 गार्ड्स आ गए, फायर आर्म्स के साथ। चलो, सब मिलकर लड़ते हैं। अपने डर के बावजूद उन्होंने हिम्मत जुटाई और 4 गार्ड्स के अगेंस्ट अपनी जिंदगी के लिए फाइट करने की तैयारी की। वुश वुश। जब वो अपनी एबिलिटीज एक्टिवेट करने वाले, 2 गार्ड्स अचानक गिर गए। उनके गेल से खून बहा। बाकी 2 गार्ड्स ने क्विक टर्न लिया, सिर्फ 2 बुलेट्स के सामने होने के लिए। सब देखो। जॉर्ज, जो 4 गार्ड से डील कर चुका था, स्टन बच्चों की तरफ देखा और रिलीफ से सांस ली। अभी भी 30 बच्चे जिंदा थे। वो बिल्कुल वक्त पर पहुंच गया था। नंबर 757। देखा कि उनका रेस्क्यूअर यूजुअली साइलेंट। नंबर 757 है। रिक थोड़ी देर के लिए स्टन्ड हुआ लेकिन जल्दी एंग्शियस हो गया। गैब्रिएला और लोरा अभी भी कैफेटेरिया में हैं। मेन गार्ड्स को क्लियर कर चुका हूं। तुम सब एस्केप कंटिन्यू करो। मैं उन्हें रेस्क्यू करने जाऊंगा। बिना हेसिटेशन के जॉर्ज ने एम्प्टी सब मशीन गन ड्रॉप किया, फॉलन गार्ड्स के 2 वेपन्स उठाए और कैफेटेरिया की तरफ चार्ज किया। कितना रूथलेस। जब वो कैफेटेरिया में घुसा तो उसने X-24 को देखा जो गार्ड के गेल पर स्ट्रैडल करके उसके सिर पर रिलेंटलेसली अटैक कर रही थी, जब तक उसका दिमाग हर जगह फेल न गया। ये साइट सराउंडिंग गार्ड्स को स्टार्टल कर गई। अपनी रिलेंटलेस अटैक के बावजूद X-24 का स्लिम फ्रेम उसको वल्नरेबल बनाता था। गार्ड्स ने क्विकली रिएक्ट करते हुए गन फायर से उसको सप्रेस किया। हालांकि उसको किल नहीं किया जा सकता था उसकी रिजेनरेटिव एबिलिटीज की वजह से, लेकिन वो अभी एयर से गिर कर रिट्रीट करने पर मजबूर हुई। इसी वक्त गैब्रिएला, जो अपनी एम्यूनिशन खत्म कर चुकी थी, कवर के पीछे पिन हो गई और ज्यादा मदद नहीं कर पा रही थी। अब अपनी असली स्किल्स दिखाने का वक्त है। इस वक्त सिर्फ नाइव्स कंट्रोल करके फाइट करना क्लियरली इनसफिशिएंट था। जॉर्ज के पास रिजेनरेटिव एबिलिटीज नहीं थी और वो इतनी गन्स के प्रेशर में ओवरवेल्म नहीं हो सकता था। अगर उसने एनिमीज को जल्दी एलिमिनेट नहीं किया तो वो रिलेंटलेस फायर पावर का सामना करता। इसलिए जॉर्ज ने 2 सब मशीन गन्स उठाई, अपनी मैग्नेटिक कंट्रोल बुलेट्स पर चैनल की और एक फ्रेंजीड असॉल्ट शुरू की। बुलेट्स अपनी यूजुअल ट्रैजेक्टरीज फॉलो करने के बजाय एयर में उसकी मैग्नेटिक पावर के इन्फ्लुएंस से कर्व करते हुए डेडली प्रिसिशन के साथ हर गार्ड के फोरहेड के सेंटर को हिट कर रही थी। सब मशीन गन्स की फायरिंग स्पीड और स्नाइपर राइफल्स की एक्यूरेसी का कॉम्बिनेशन इस डायर सिचुएशन में जॉर्ज का ट्रू ट्रम्प कार्ड था। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपका सपोर्ट ही मोटिवेशन है।